Hello students, I welcome you all to our fourth lecture on chemical kinetics. Before we start our lecture, let me show you the syllabus which we have in semester 3. Semester 3, physical chemistry is the second theory paper. We have 4 units. First unit is chemical kinetics, second unit is phase rule, third unit is thermodynamics, whereas fourth unit is electrochemistry. I teach Unit 1, that is chemical kinetics, and Unit 4, that is electrochemistry. Phase rule will be discussed by Dr. Sikhi Sahai, and Unit 3, thermodynamics, will be discussed by Dr. V. Mushran. We have already discussed about the syllabus of electrochemistry. So now we will see chemical kinetics. In chemical kinetics, we have molecularity and order of reaction, rate law, rate constants, zero, first, second, and third order reactions and their characteristics. So among these, we have already covered molecularity, order of a reaction, rate law, rate constants, zero order reaction, first order reaction, and their characteristics. Even in second order reactions also, one of the cases we have already covered. So remaining we have determination of order of a reaction, Arrhenius equation, activation energy, collision theory of bimolecular reactions, Lindemann theory of unimolecular reactions, and qualitative treatment of transition state theory. So this is the syllabus which we have in chemical kinetics. In our last class, we have completed first order reaction and their characteristics. And we have also discussed one of the cases of second order reactions. As we have seen, there are 2 cases in second order reactions. What are those? Case 1 is concentration of both the reactants is equal. So here if you see, concentration of both the reactants is equal. And another case is concentration of both the reactants is not equal. So case 2 is concentration of both the reactants is not equal. In case 1, we have discussed how to deduce the formula for order of a reaction in second order reaction when the concentration of both the reactants is equal. Now, in today's class, we will discuss the derivation of second order rate constant in a second order reaction in which the concentration of both reactants is not equal. Also, we will see the characteristics of these reactions. In that, we will also discuss a special case in which one of the reactants is present in higher concentrations, which means pseudomolecular first order reaction. So those things we will discuss. For a second order reaction, in first case, when the concentration of both reactants equal, the formula for rate constant is K is equal to 1 by T into X by A into A minus X, where A is initial concentration and A minus X is the concentration left behind at time T. These things we have already discussed in our previous lecture. Now we will discuss the second case. In second case, concentration of both the reactants is not equal. Let us say that the reactants are A and B and their concentrations are different. Then what will be the formula for rate of a reaction? Rate R is equal to dx by dt, which is equal to rate constant small k into concentration of A into concentration of B. What are concentration of A and concentration of B here? These are the concentrations which are left behind at time T, which means after a reaction time T, these are the concentration of reactants which are left behind. Reaction time T खत्म होने के बाद जो reactants का concentrations बचा है वो concentration of A और concentration of B at time T. We have already seen if starting concentration is small a and X is the decomposed concentration or X is the concentration which is decomposed in time T, then what will be the concentration left in case of A? That will be equal to A minus X. So in case of concentration of capital A, we can write small a minus X. Similarly, in case of B, we can write B minus X.
So this is the concentration of B which is left after a reaction time T. So if you substitute these values, what we will get? Dx by dt is equal to small k into A minus x into B minus x. Now let us bring all these concentration terms to left hand side and the remaining terms to right hand side. So what will happen? Dx by A minus x into B minus x is equal to k into dt. So what will be the next step? Next we have to integrate on both sides. दोनों तरफ हमें integrate करना है. But if you see here, it is difficult to integrate this in this form. तो इसको इस form में integrate करना हमें मुश्किल है. That is why we will try to split this into partial fractions. तो इसको हम partial fractions में split करेंगे. When we split this into partial fractions, what we will get? Let us see. We will get 1 by A minus B into dx by B minus x minus dx by A minus x, which is equal to k dt. So now we will see how to split this one into partial fractions. इसको partial fractions में कैसे हम split कर सकता है वो हम देखेंगे. So for partial fractions, we have to take this expression. In this, we will take 1 by A minus x into B minus x. So we have to split this into partial fractions. Say for example, capital A by A minus x plus capital B by B minus x. यहाँ capital A, capital B इससे या reactant से कोई लेना देना नहीं है. या आप चाहे तो इसको कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं. मान के चलिए ये कैपिटल सी या कैपिटल डी कोई भी आप ले सकते हैं. तो नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम ले लेंगे. तो एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा? ये बी माइनस एक्स कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करेगा और ये ए माइनस एक्स जो है कैपिटल बी को मल्टीप्लाई करेगा. सो व्हाट विल हैपन? दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. इसका मतलब एलसीएम होगा ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स. तो ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो न्यूमरेटर्स दोनों हमें बराबर हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन? कैपिटल ए इंटू बी माइनस एक्स plus capital B into A minus x is equal to 1. Now let us take different conditions. Say for example x is equal to small a. तो हम एक केस ले लेंगे, इसमें x का वैल्यू हम ले लेंगे कि वो स्मॉल a का बराबर है. तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करिए. तो a माइनस a 0, so b into 0 0. तो ये वाला पूरा टर्म जो है 0 हो गया. Come to this one, a into b minus x का जगह small a. So a into b minus a is equal to 1, which implies a is equal to 1 by b minus a. या यहाँ पर -1 हम कॉमन करेंगे तो that will be equal to -1 by a minus b. Now let us take another case, that is x is equal to b. इस बार x का जगह हम small b सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो क्या होगा? small b minus small b. ये x का जगह स्मॉल b हो गया तो b b कैंसिल हो गया. तो ये इंटू 0, तो ये 0 हो गया है. तो बचा क्या है? कैपिटल B इंटू ये माइनस b. x का जगह b सब्स्टिट्यूट किया तो b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 1. So thus when x is equal to b, we have got the expression capital B into a minus b is equal to 1. Thus capital B is equal to 1 by a minus b. तो ये दोनों लगा के हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या होगा? We will get 1 by a minus x into b minus x is equal to a का जगह क्या आया? -1 by a minus b into a minus x plus 1 by a minus b into b minus x. Now if you see here in right hand side we have 1 by a minus b in
कॉमन, तो दोनों तरफ हमें 1/a-b कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या आएगा, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। तो 1/a-b कॉमन, dx by b minus x minus dx by a minus x is equal to k dt. Now let us integrate on both sides. अब दोनों तरफ हम easily integrate कर सकता है। कैसे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो इंटीग्रल 1/a minus x into dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल 1/x dx का फॉर्मूला क्या है, ln x, लेकिन यहाँ x का जगह a minus x है, तो इसका मतलब ln a minus x। लेकिन x का जगह हमें a माइनस एक्स था, ये तो कांस्टेंट है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू -1 हमें आएगा, तो ये a माइनस एक्स को भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका वजह से -1 आया, तो इसीलिए हमें ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो गया, माइनस ln a माइनस एक्स। सेम विथ b माइनस एक्स आल्सो, so in case of b minus x we will get minus ln b minus x. So here we are integrating on both sides and we will get 1/a minus b, this was in common, and in bracket dx by b minus x का इंटीग्रेशन क्या आया, minus ln b minus x, और यहाँ 1/a minus x into dx की इंटीग्रेशन क्या आएगा, minus ln a minus x, लेकिन आगे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस इंटू माइनस हमें प्लस आएगा। Thus we have got this expression. So here if you see what is I is integration constant. Now we have to deduce the value of I, integration constant का वैल्यू हमें अभी निकालना है, तो इसके लिए जैसे हम करते आया था वैसे ही सेम, मतलब इनिशियल कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। सो व्हाट आर द इनिशियल कंडीशंस, इनिशियली एट टाइम t equal to 0 there was no reaction, which means there was no decomposition of reactants. Initially टाइम t equal to 0 का समय कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए ये या बी रिएक्टेंट्स में कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, इसका मतलब x का वैल्यू 0, which means initially at time t equal to 0 x equal to 0. Now let us substitute x is equal to 0 in this expression. तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और t का जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 है। Thus initially time t equal to 0 and x equal to 0. So what will happen, x का जगह 0 है तो ये माइनस ln b हो गया, और यहाँ पर भी x का जगह 0 तो ये प्लस ln a हो गया, इसका मतलब ln a माइनस ln b, तो log a माइनस log b जैसा है, तो ln a by b. I have already told you what do you mean by ln, ln का मतलब log base e, log base e, तो ये log base e log base 10 का बराबर कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू 2.303 log base 10, base 10, तो log e इज इक्वल टू 2.303 log base 10, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। Thus here we have got 1/a minus b into ln a by b is equal to I, क्यों, यहाँ t is equal to 0 होने की वजह से ये की t टर्म भी 0 हो जाएगा। Thus I is equal to 1/a minus b into ln a by b. Now substitute I value in this equation, then what we will get, 1/a minus b into minus ln b minus x plus ln a minus x is equal to kt plus 1/a minus b log a by b. हमें k का फॉर्मूला चाहिए तो इसको यही रहने दीजिए और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो क्या होगा, दोनों तरफ 1/a minus b कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या आएगा, 1/a minus b into ln a minus x डिवाइडेड बाय b minus x, तो ये कैसे आ गया,
तो ये प्लस है, ये माइनस है। log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b जैसा ही है। तो ln a माइनस एक्स बाई b माइनस एक्स ये आ गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले आया तो प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए माइनस ln a बाई b विच इज इक्वल टू kt। अब फिर से इसका भी हम log a माइनस log b फॉर्म में है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं फर्दर और सॉल्व करने के लिए। और इस टाइम t टर्म को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आ सकता है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। thus we will get k is equal to 1 by t into a minus b ln b into a minus x divided by a into b minus x। यहाँ b न्यूमरेटर में कैसा आ गया, क्योंकि यहाँ log a माइनस log b फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा। अगर आप चाहे तो हम दिखाएंगे कैसे वो आएगा। तो 1 बाई ए माइनस बी इंटू ln ए माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, ये तो ऑलरेडी है, ये डिनोमिनेटर में a बाई बी डिनोमिनेटर में यहाँ पर आना चाहिए, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा a बाई बी। अब क्या होगा, ये b जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तब हमें ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगा। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ log बेस 10, इसको log बेस 10 का टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे, ln का जगह 2.303 log बेस 10 हम लिखते हैं, तो हमें एक्सप्रेशन k is equal to 2.303 divided by t into a minus b log b into a minus x divided by a into b minus x। So this is the formula for rate constant of a second order reaction in which concentration of both the reactants is not equal। जब हमें एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं दोनों का कॉन्सेंट्रेशंस बराबर नहीं है, तब उस केस में रेट कांस्टेंट का हमें फॉर्मूला होगा k is equal to 2.303 by t into a minus b log b into a minus x by a into b minus x। अगर बराबर हो गया तो फॉर्मूला क्या है, आपको याद है ना, k is equal to 1 by t into x by a into a minus x। ये k का फॉर्मूला है जब दोनों कॉन्सेंट्रेशंस बराबर है, या हम लिख सकते हैं k is equal to 1 by t into 1 by a minus x minus 1 by a। Now let us discuss the characteristics of second order reaction। second order reactions का characteristics हम अभी देखेंगे। characteristics में पहला characteristic point हम क्या देख रहा था, units of rate constant। रेट कांस्टेंट का यूनिट्स हम देखते थे, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट्स क्या होगा, अगर यहाँ पर आप देखेंगे k is equal to 1 by t into x by a into a minus x, तो 1 by t माने टाइम, तो यहाँ तो टाइम इनवर्स हो गया, तो इस एक्सप्रेशन से टाइम इनवर्स आ गया। अब x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये माइनस एक्स भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन दूसरा कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। हम यूनिट्स का बारे में बात कर रहे हैं, वैल्यू के बारे में नहीं है, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा, तो x का यूनिट्स कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब से फॉर एग्जांपल मोल पर लीटर, और ये का भी यूनिट्स मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है, डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचा है, तो दोनों जगह यहाँ डिनोमिनेटर में टाइम है, डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब यूनिट्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स और liter mole inverse time inverse। Let us see those points। So first units of rate constant, that is k is equal to liter mole inverse time inverse। This has been deduced from the formula of rate constant of a second order reaction। Now say for example एक केस में हम
कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। और दूसरा केस हमने ले लिया, उस केस में कॉन्सेंट्रेशन को मोलाल में हमने एक्सप्रेस किया। पहला केस में मोलार मोलारिटी मोलार में एक्सप्रेस किया, दूसरा केस में मोलाल मोलालिटी में हमने एक्सप्रेस किया। तो दोनों में हमें जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? अगर हम देखेंगे तो एक कॉन्सेंट्रेशन दूसरा कॉन्सेंट्रेशन कट हो जा रहा है, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो बच जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हमें यूनिट्स में जैसे ऑलरेडी देखा था, यहाँ लीटर मोल इनवर्स मतलब मोलार इनवर्स हमें है। तो एक केस में मोलार इनवर्स टाइम इनवर्स है, दूसरा केस में मोलाल इनवर्स टाइम इनवर्स। तो मोलारिटी का वैल्यू अलग और मोलालिटी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग वैल्यूज आ सकता है। Thus, the numerical value of a rate constant will change with the change in units in which concentration is expressed. अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट्स हम चेंज कर देंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? इस रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला से हम एक्सप्लेन कर सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम को कैसे डिड्यूस करेंगे? फॉर दिस वी हैव टू टेक अगेन द फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हम ले लेंगे, तो टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ ले लेंगे, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? A/2। कैसे A/2 का बराबर हो जाएगा? क्योंकि टी हाफ समय में जो रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा था वो A/2 कॉन्सेंट्रेशन डिकम्पोज हो जाएगा। When time t is equal to t half, the concentration of reactant A decomposed will be equal to small a/2. That implies x is equal to small a/2. इसका मतलब अब हमें t का जगह पर t half सब्स्टिट्यूट करना है और x का जगह पर small a/2 सब्स्टिट्यूट करना है। So let us see. So we have the formula for rate constant k is equal to 1 by t into x by a into a minus x। अब क्या होगा? एट टाइम t is equal to t half, x is equal to a/2। तो इसको इस एक्सप्रेशन में हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? k is equal to 1 by t half a/2 divided by a into a minus a/2। तो a minus a/2 का वैल्यू क्या होगा? a/2। दैट इंप्लाइज k is equal to 1 by t half a/2 divided by a into a/2। तो a/2 कैंसिल, अब बचा 1 by a into 1 by t half। दैट इंप्लाइज t half is equal to 1 by a into k। ये कैसे आया? t half को हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके गया और k को जो है राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में हमने ले आया। तो thus t half लाइफ टाइम is equal to 1 by a into k, where a is initial concentration and small k is rate constant. Thus, from this expression, we can write t half is inversely proportional to initial concentration. Half life time जो है वो initial concentration का inversely proportional होगा। Thus, half life time is inversely proportional to the initial concentration. If you remember, in zero order reaction, half life is directly proportional to initial concentration. In first order, half life is independent of initial concentration. Now, in second order, half life is inversely proportional to initial concentration. अगर third order reaction हम ले लेंगे तो क्या होगा? half life will be inversely proportional to square of initial concentration आएगा। Now let us discuss about another characteristic point. So in this we will take a special case in which let us take that one of the concentration terms of the reactants is in higher concentrations. तो मान के चलेंगे कि दोनों concentration terms में से एक का concentration जो है बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा?
that is the case which we have discussed in pseudomolecular reactions. तो pseudomolecular फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर जो है 1 हो गया, क्योंकि ये का कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा है. If you remember, this is the case which we have taken. So if you see here in these two concentrations, one is 0.1 molar but another one is 55.55 molar. तो ये का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हमने एक्सपेक्ट किया, लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ था, वो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि एक कंसंट्रेशन टर्म जो है वो बहुत ज्यादा है. तो इसका वजह से हमें ऑर्डर जो है 1 हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन को सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, या ये वाला एग्जांपल जो है सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है. तो सेम इस केस को अब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर आएगा. तो हियर वी आर टेकिंग द केस when one of the reactants is present in large excess, what will happen, second order becomes first order. So here as one of the concentration terms should be in higher value, एक का कंसंट्रेशन ज्यादा होना है, इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है. तो इसीलिए यहाँ पर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, K is equal to 2.303 by T into A minus B log B into A minus X by A into B minus X. इसका मतलब जो सेकंड केस है उसमें जो रेट कांस्टेंट आया वो वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है. नाउ what we have to do, one of the concentrations is very high. Now say for example A is much greater than B. तो यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और B है, मान के चलेंगे कि A का कॉन्सेंट्रेशन B का वैल्यू से बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब A का कंपैरिजन में हम B को नेग्लेक्ट कर सकता है. जहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा था वहां पर अगर A और B दोनों है तो A माइनस B है, तो B को हम नेग्लेक्ट कर सकता है. या A माइनस X है तो B खुद ही कम है तो X और भी कम हो जाएगा, तो X को भी अगर A माइनस X टर्म है तो X को भी हम नेग्लेक्ट कर सकता है. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मान के चलेंगे कि A इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 55.55, जैसे वाटर का था वैसे ही हम ले लेंगे 55.55 मोलार, और से फॉर एग्जांपल B इज इक्वल टू 0.01 मोलार. B का कंसंट्रेशन मान के चलेंगे कि ये 0.01 मोलार है. नाउ व्हाट इज X? X is the concentration of reactants decomposed in time T. मान के चलिए T टाइम में लगभग 40% रिएक्शन खत्म हो गया, तो क्या होगा, X का वैल्यू क्या होगा, X इज इक्वल टू 0.004 मोलार, 0.004 मोलार, क्योंकि ये लगभग 40% डिकम्पोज हो गया है. अगर हम A माइनस B वैल्यू ले लेंगे तो A माइनस B वैल्यू कितना होगा, 55.54, तो लगभग ये A का वैल्यू से बराबर है. अगर A माइनस X ले लेंगे वो और भी बराबर है, तो इसीलिए अगर A माइनस B टर्म है तो A माइनस B में से B को हम नेग्लेक्ट कर सकता है, या A माइनस X टर्म है तब भी हम X टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता है. अगर B माइनस X टर्म है तो X को नेग्लेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि B और X का वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं है. तो इसीलिए इस केस में अगर B माइनस X है तो X को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो नाउ if you take this input and neglect the value of X accordingly, then what will happen? K is equal to 2.303 by T into A, क्योंकि A माइनस B में हमने B को नेग्लेक्ट कर दिया है, into log B into A, यहाँ A माइनस X में से
x को हमने नेग्लेक्ट किया और डिवाइडेड बाय a इंटू बी माइनस एक्स। यहाँ b माइनस एक्स में x को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि b और x का वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, तो इसीलिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये और ये दोनों कैंसिल है, तो अब बचेगा क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई a इंटू टी लॉग b बाय a माइनस एक्स। अब ये कांस्टेंट a को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो क्या होगा, k इंटू a इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग b बाय b माइनस एक्स। तो इसको रेट कांस्टेंट k डैश हम मानेंगे, तो जो नया रेट कांस्टेंट है सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए जो नया रेट कांस्टेंट है उसको k डैश हम मानेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है बिल्कुल वैसे ही है, तो 2.303 बाई टी लॉग b बाय b माइनस एक्स। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे हम सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को हम एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि अगर वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, एक कंसंट्रेशन टर्म जो है अगर वो बहुत ज्यादा है तो हमें जो ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर। तो उसका मैथमेटिकल प्रूफ ये है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ग्राफ्स। So if you see 1 by a minus b ln b into a minus x divided by a into b minus x versus टाइम, तो ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला से हैं, तो इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ जैसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ जैसा है। तो y का जगह पर हमें क्या है, 1 बाई ए माइनस बी ln b इंटू ए माइनस एक्स बाई ए इंटू बी माइनस एक्स। इसका मतलब सिर्फ t को इस तरफ ले जाएंगे तो बाकी सब y है। तो हमें y इज इक्वल टू ये m का जगह पर है, x का जगह पर t है, तो स्लोप क्या है, m का बराबर है, तो स्लोप इज इक्वल टू k। नेक्स्ट ग्राफ, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये। अगर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये बढ़ते जा रहा है तो रेट वैल्यू भी हमें इंक्रीज होते आ रहा है। ये ग्राफ हम देखेंगे तो ये क्या कौन सा ग्राफ है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर है, क्योंकि हमें फॉर्मूला है रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर। जैसे इसका स्क्वेयर है तो हमें प्लॉट करेंगे तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का बीच में ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा। नेक्स्ट ग्राफ इज 1 बाई ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम और टाइम वर्सेस 1 बाई ए माइनस एक्स। तो ये 1 बाई ए माइनस एक्स माने कहां पर हमने देखा, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो उस केस में हम ले लेंगे तो रेट कांस्टेंट के पास हम जाएंगे, तो रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू 1 by a minus x minus 1 by a. If you see here, this is just like y is equal to mx plus c graph. तो हमें y is equal to mx plus c फॉर्म में हमें चाहिए. So now what we will do? Take t to left hand side and what we will get? That implies kt is equal to 1 by a minus x माइनस 1 बाय ये। अब हमें y हमें चाहिए तो ये y को यहीं पे रहने दीजिए और ये c टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। Thus we will get 1 by a minus x is equal to kt plus 1 by ये। तो इसका मतलब ये y is equal to mx plus c फॉर्म में है, तो m का जगह पर हमें रेट कांस्टेंट k है और x का जगह पर टाइम है और c का जगह पर 1 by ये है। Thus graph will come like this. So slope m is equal to k, slope जो है k का बराबर है और इंटरसेप्ट वैल्यू c जो है 1 by ये का बराबर है। ऐसे हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। If you see here, we can write this expression in other terms also. How? Instead of small a, we can write concentration of
ए नॉट, और ए माइनस एक्स का जगह क्या लिख सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए। तो उस केस में भी हम ग्राफ देख सकते हैं। Thus, K is equal to 1 by T into 1 by concentration of A minus 1 by concentration of A naught। ये दोनों सेम है, बस टर्मिनोलॉजी में अंतर है। तो A minus X का जगह पर 1 by concentration of ये हमने लिखा है। दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, both represent the concentration of A left behind after a reaction time T। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा, 1 by कैपिटल A naught concentration, slope same K का बराबर है। Thus we can see the graphs of second order reactions. Now we will discuss about examples of second order reactions. First example is saponification reaction. This is very well known example. saponification example जो है ये बहुत जाने माने एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एस्टर को NaOH का प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस में इथाइल एसीटेट को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमें सोडियम एसीटेट और अल्कोहल हमें फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। So saponification reaction is a second order reaction. Another example, we can take reaction between iodide and परसल्फेट। आयोडाइड और परसल्फेट का बीच में जो रिएक्शन है वो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका रिएक्शन आप देखेंगे तो परसल्फेट, सोडियम या पोटेशियम हम ले लेंगे, तो परसल्फेट रिएक्ट विथ आयोडाइड टू फॉर्म सल्फेट एंड आयोडीन। तो ये वाला रिएक्शन भी हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। Thus we can discuss about examples of second order reactions. Now let us see the units of zero order reaction, first order reaction and second order reaction in one place. तो जीरो से लेकर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तक जो यूनिट्स आया सारे को एक बार हम और देखेंगे। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, in case of zero order reaction what happened, units will be equal to mole, liter inverse, second inverse। तो यहाँ लीटर इनवर्स माने डेसीमीटर पावर -3, क्योंकि लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। तो लीटर का जगह हम डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए लीटर का जगह यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब टर्म है। तो जब ऑर्डर जीरो है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट्स का फॉर्मूला है मोल डेसीमीटर पावर -3 सेकंड इनवर्स। When order is equal to 1, what happens? K is equal to time inverse or second inverse. And when order is equal to 2, what happens? A mole inverse, decimeter cube, second inverse. So these three we have already discussed. So in general, अगर order of reaction n है, तो उस केस में हमें K is equal to concentration by time into 1 by concentration power n। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है तो क्या होगा, ये पावर जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई टर्म नहीं रहेगा, बचा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स विल बी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और मोल डेसीमीटर पावर -3 सेकंड इनवर्स। अगर ऑर्डर का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, तो यह 1 हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल, तो बचा क्या है 1 बाय टाइम। तो इसका मतलब सेकंड इनवर्स और मिनट इनवर्स और आवर इनवर्स ऐसे हम लिख सकते हैं। When order is equal to 2, what will happen? n का जगह 2 लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2 है स्क्वायर हो गया, तो 1 टाइम हमें कट गया, तो बचा क्या है 1 डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ टाइम का जगह सेकंड इन्होंने लिया, तो 1 बाय सेकंड इंटू 1 बाय मोल डेसीमीटर पावर -3, तो हमें आएगा मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। ऐसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट्स को हम निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछा है अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, सिंपली n का जगह पर 3 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार कैंसिल होके यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन
स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल लेटर इनवर्स है, तो ये लेटर इनवर्स न्यूमरेटर में जाएगा, तो लीटर स्क्वायर मोल पावर -2 इंटू टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। So with this, I am concluding today's lecture. We will discuss about third order reactions and determination of order of a reaction. Those topics we will discuss in next lecture. Thank you.